دا بیوٹی اینڈ دا بیسٹ۔ اس ناول کو تحریر کیا ہے سمرین زاہد نے۔ تیرے جستجو کے حصار میں، تیرے خواب تیرے خیال سے، میں وہ شخص ہوں جو کھڑا رہا تیری چاہتوں سے ذرا پرے۔ کبھی دل کی بات کہی نہ تھی، جو کہی تھی وہ بھی دبی دبی۔ میرے لفظ پورے تو تھے مگر تیری سماعتوں سے ذرا پرے۔ تو چلا گیا میرے ہم سفر، ذرا دیکھ مڑ کے تو ایک نظر۔ میری کشتیاں تو ہیں جلی ہوئی، تیرے ساحلوں سے ذرا پرے۔ پلیز اسے کچھ مت کرنا، تم چاہو تو میری جان لے لو، مگر اسے چھوڑ دو۔ میں تمہارے پیر پڑتا ہوں، میری اینجل کو چھوڑ دو۔ اس نے نم آنکھوں سے اس پتھر دل انسان کے پیروں میں گرتے ہوئے التجا کی تھی، وہ جس نے کبھی پانی کا گلاس خود نہیں بھرا تھا۔ آج وہ اس صنف نازک کے لیے نہ صرف پیروں تک گرا ہوا تھا بلکہ گڑ گڑا رہا تھا۔ تم اسے نہیں بچا پاؤ گے، بلکہ تم خود کو بھی نہیں بچا پاؤ گے۔ آج کی یہ کالی رات تم دونوں پر بھاری ہے، اس آدمی نے قہقہ لگاتے ہوئے کہا تھا۔ تمہیں میری جان چاہیے تو میری جان لے لو، مگر میری اینجل کو چھوڑ دو، اسے جانے دو۔ تمہاری دشمنی مجھ سے ہے تو اسے بیچ میں مت لاؤ۔ اس نے اس کے مقابل کھڑے ہوتے ہوئے اس سے کہا تھا، بہت معصوم ہو یار تم، یا پھر بننے کی کوشش کر رہے ہو۔ تمہیں اچھی طرح پتا ہے بندے کو دشمنی وہاں سے نکالنی چاہیے جہاں سے دشمن تڑپ کر رہ جائے، اور تم تو جانتے ہو ہم مردوں کا ویک پوائنٹ ہماری کمزوری، ہماری پسندیدہ عورت ہی ہوتی ہے، اور تمہاری کمزوری تمہاری پسندیدہ عورت تمہاری اینجل ہے۔ تبھی تو میں اسے یہاں لایا ہوں۔ تو پیارے دشمن، میں کیسے تمہاری اینجل کو بیچ میں نہ لاؤں؟ اس نے کہکا لگاتے ہوئے اپنا ہاتھ ہوا میں کیا تھا، اور ہاتھ میں پکڑی سندی نما چھڑی اس کی جانب کی تھی۔ اس میں سے روشنی نکلنا شروع ہوئی تھی جو سیدھی اس سامنے لیٹی بے ہوش لڑکی کے وجود کی طرف جا رہی تھی۔ نہیں، پلیز ایسا مت کرو، نہیں، اس نے چیختے ہوئے اس جادو کو اپنے جادو سے توڑنے کی کوشش کی تھی، مگر اب وہ کمزور ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے وہ اس کے جادو کو اس تک پہنچنے سے روک نہ پایا، اور وہ روشنیاں سیدھا اس لڑکی تک پہنچنے لگی تھیں کہ وہ بھاگتا ہوا اس کے سامنے اس کی ڈھال بن کر کھڑا ہوا تھا، مگر اس آدمی نے اپنے ہاتھ سے اسے اٹریکٹ کر کے جادو کی مدد سے پیچھے پھینک دیا تھا، اور وہ خطرناک روشنیاں اس لڑکی کے جسم میں جذب ہونا شروع ہوئی تھیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ صنف نازک بنا کسی قصور کے جل کر خاک ہو چکی تھی۔ اینجل، اس نے درد کی شدت سے چیختے ہوئے اسے پکارا، مگر تب تک وہ مکمل طور پر جل چکی تھی۔ پاس آؤ، ایک التجا سن لو، پیار ہے تم سے بے پناہ سن لو، ایک تم ہی کو خدا سے مانگا ہے، جب بھی مانگی کوئی دعا سن لو، ابتدائے عشق کی
हुई तुमसे, तुम हो चाहत की इंतहा सुन लो। क्या हुआ, क्या देखा जा रहा है जो ऐसे लैपटॉप में सर दिए बैठी हो? उसकी दोस्त ने आते ही उसे लैपटॉप में कुछ सर्च करते देख पूछा। कुछ नहीं, बस यूरोप के बारे में सर्च कर रही थी, उसने उसे देखते हुए कहा, और फिर लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ नज़रें मरकूज कर ली थीं। सच बताओ, मुझे पता है तुम इतनी अच्छी नहीं कि यूरोप के बारे में सर्च करोगी। यकीनन कोई हिस्टोरिकल प्लेस के बारे में सर्च कर रही होगी तुम। जवेरिया ने उसे देखते हुए पूछा था, क्योंकि उसे कदीम चीज़ें बहुत पसंद थीं। यूरोप की एक कदीम यूनिवर्सिटी, वैकिटन लाइब्रेरी। उसने एक नज़र से उसे देखा, फिर लैपटॉप के कीबोर्ड पर रवानी से उंगलियां चलाते हुए कहा, ओह माय गॉड, हिस्टोरिकल कीड़ा हो तुम। कसम से मिस ने बताकर गलती की है कि यूरोप में एक कदीम लाइब्रेरी है। जवेरिया ने सर पर हाथ मारते हुए कहा था, फालतू बात नहीं, यहाँ देख तो सही कितनी खूबसूरत लाइब्रेरी है। उफ, क्या व्यू है। महानूर ने लैपटॉप पर वैकिटन लाइब्रेरी की खूबसूरती भरी तस्वीर उसके सामने करते हुए कहा था। खूबसूरत है तो क्या करें, उसने लापरवाही से कहा था। मैंने सोचा है, बल्कि फैसला किया है, मैं भी उस खूबसूरत कदीम लाइब्रेरी में जाऊंगी। महानूर ने लैपटॉप पर खुली लाइब्रेरी की खूबसूरती भरी तस्वीर को देखते हुए उसे बताया था। माही, पागल हो गई हो तुम, पाकिस्तान से यूरोप जाना चाहती हो? जवेरिया ने हैरत से पूछा था। हाँ जाऊंगी, मगर पता नहीं क्यों मुझे वहां जाना है, उसने उन तस्वीर को देखते हुए कहा था। तुम्हें पता भी है वहां जाने के लिए कितने पैसे चाहिए? कहां से लाओगी इतनी बड़ी रकम? उसने उसकी अकल पर मातम करते हुए पूछा था। मिल जाएगी रकम, आ जाएंगे पैसे। वैसे भी मैंने बहुत सी कमेटियां डाली हैं, तकरीबन 4 तो होंगी, वो सारी एक बार ही खुलेंगी तब जाऊंगी। अगर पैसे कम भी पड़ गए तो लोन ले लूंगी, मगर जाऊंगी मैं, उसने अटल फैसले में कहा था। और जवेरिया ने उसकी बात सुनकर तासुफ से सर हिलाया था, जबकि वो दोबारा लैपटॉप की जाने मुतवज्जो हो चुकी थी। महानूर पाकिस्तान के शहर इस्लामाबाद में पैदा हुई थी और उसकी पैदाइश ही ट्रेजेडी से भरी थी। जब वो पैदा हुई तो उसकी अम्मी उसके पैदा होने के 4 घंटे बाद ही बिना किसी दुख और बीमारी के इस दुनिया को छोड़ गई थी। डॉक्टर्स ने एड़ी चोटी का जोर लगाया, हर तरह की कोशिशें कर ली, मगर मरने की कोई अलामत ना दिखाई दी थी। बस सामने एक मुर्दा लाश थी, और वो पहली खातून थी जिसकी मौत की वजह ना तो कोई बीमारी थी और ना कोई दुख, और ये मिस्ट्री ही रही। जब महानूर 15 साल की हुई तो उसके वालिद रातों रात घर से गायब हो गए। रिश्तेदारों ने बहुत कोशिश की, मगर कोई सुराग ना मिल पाया। बिल आखिर थक हार कर बैठ गए और महानूर ने एक यतीम खाने में रहने का फैसला किया, क्योंकि रिश्तेदारों ने उसे रखने से मना कर दिया था। और यूं उसके अब्बा की मिस्ट्री ही रही। वो 20 साल की होने वाली थी, यानी उस पर वो बुरा वक्त आने वाला था जो उसकी ज़िंदगी को पूरी तरह बदल कर रख दे। उसे बचपन से शौक़ था कदीम चीज़ों, इंसानों और जगहों के बारे में जानने का, उन पर रिसर्च करने का, और इसी शौक़ से मजबूर होकर वो कई सालों पुरानी कदीम चीज़ों के बारे में पढ़ती रही। कदीम जगहों पर जाती थी, मालूमात इकट्ठी करती थी। चूँकि वो अकेली थी और बीए में पढ़ रही थी, इसलिए अपना खर्चा उठाने के लिए वो जॉब करती थी। हज़ारों रुपए की कमेटियां डाल रखी थी सिर्फ इस शौक़ को पूरा करने की खातिर। अब उस पर उसका ये शौक़ क्या क्या नई चीज़ें आश्कार करता है, ये तो अल्लाह जानता है, या फिर सही वक्त जो उस पर आने वाला था। निकालो मुझे यहाँ से, खोलो इन बेड़ियों को, मार दूंगा मैं, सबको मार दूंगा, मुझे खोलो पीटर। उस हैवान नुमा इंसान ने अपने हाथों पर बंधी बेड़ियों को तोड़ने की कोशिश करते हुए गुस्से से कहा था, मगर बेसूद। उन बेड़ियों को नहीं टूटना था,
सो वो ना टूटी कि अचानक उसके सामने एक आदमी रुनमा हुआ था। क्या हुआ? दर्द हो रहा है? तकलीफ हो रही है? गुस्सा आ रहा है ना? मैंने भी यही सब बर्दाश्त किया था जब तुमने मुझ पर जुल्म ढाए थे, पीटर ने उसे देखते हुए कहा था। एक दफा मुझे आजाद होने दो, मार दूंगा मैं तुझे। उस हैवान नुमा इंसान ने आंखों में गुस्सा लिए उससे कहा था। रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। तुम जानते हो तुम्हें यहां से कोई आजाद नहीं कर सकता। जहां तक मैं जानता हूं तो कोई ऐसा नहीं है जो तुम्हें मेरी कैद से रिहाई दे सके, पीटर ने कहका लगाते हुए कहा था। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, देखना तुम, मैं यहां से आजाद होकर दिखाऊंगा। हर जुल्म का हिसाब देना होगा तुम्हें, मुझे कैद रखने का हिसाब देना होगा। उसने गुस्से से सुर्ख हो रही आंखों से उसे देखते कहा था, साथ ही अपने हाथों को बेड़ियों के जाल से आज़ाद करवाना चाहा। तुम नहीं कर पाओगे कुछ भी। यहाँ से निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। सदियों से कैद हो यहाँ। जब तुम तब नहीं निकल सके, अब क्या खाक निकलोगे? पीटर ने इस्तज़ाइया अंदाज में हंसते हुए कहा था। खैर फिर भी इस बार खुली ऑफर देता हूँ, कर लो जो कर सकते हो, मैं तो चला। वैसे भी हम जादूगरों का इजलास होने वाला है। तुम यहीं सड़ते मरते रहो जैसे सदियों से मर रहे हो, उसने हंसते हुए कहा था और लम्हों में वहां से गायब हुआ था। बेवकूफ पीटर, इंसान हो या जादूगर, चाहे जितना भी अक्लमंद क्यों ना हो, कहीं ना कहीं गलती जरूर कर जाता है, जो अब तुम कर चुके हो। और तुम्हें मालूम तक नहीं, मैं अपने ज़माने का जादूगर रह चुका हूँ और तुमसे ज़्यादा मैं जादू के बारे में जानता हूँ। तुम तो मेरे सामने कुछ भी नहीं। वो अलग बात है कि वक्त की सितम ज़रफ़ी थी कि आज मैं कैद हूँ, मगर मुझे रिहाई मिल सकती है और मैं खुद उसे यहाँ लेकर आऊँगा और उसका आना ही मेरी रिहाई का सबब बनेगा। तुम अपने इजलास में मसरूफ़ हो जाओगे और मैं तुम्हारी गफलत का फ़ायदा उठाकर ख़ुद को आज़ाद करवा लूँगा। उसने एक अजीब मुस्कुराहट होंठों पर सजाए खुद कलामी की थी और फिर आंखें बंद किए कुछ पढ़ने लगा कि यकायक कुछ रोशनियां उसके जिस्म से खारिज हुई थीं, जो इंतहाई खूबसूरत और रंग बरंगी थीं, और वो रोशनियां निकलते ही एक समत की जानिब चल पड़ी थीं। हाय एल्बर्ट, क्या कर रहे हो? जूली ने उसे किताब में मगन देखे पूछा था। स्टडी कर रहा हूँ, उसने किताब में झुके ही जवाब दिया था। क्या पढ़ रहे हो ये डरावना सा? उसने किसी हैवान नुमा इंसान की तस्वीर किताब के सफ़े पर देखते हुए पूछा था। जिसे तुम डरावना कह रही हो वो दरअसल एक बहुत ही खूबसूरत और पुरकशिश इंसान रह चुका था। उसने उस तस्वीर को देखकर जूली से कहा था। क्या मतलब? उसने नासमझी से पूछा था। मतलब ये कि जो तुम दरिंदा और हैवान नुमा इंसान देख रही हो, ये अपने ज़माने का एक बहुत ही खूबसूरत नकूश का मालिक, खूबरू नौजवान और पुरकशिश शख्सियत का मालिक, एक बेरहम जादूगर रह चुका है, जिसका पत्थर दिल सिर्फ एक लड़की के लिए मोम हुआ था। उसने मुस्कुराते हुए उसे बताया था। किसके लिए? जूली ने दिलचस्पी से पूछा था। उसके दुश्मन जादूगर जुनैजो की बेटी माहम के लिए। उसने उस तस्वीर को देखते हुए फौरन जवाब दिया था। व्हाट? दुश्मन की बेटी से मोहब्बत? फिर तो काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी होगी ये। दो जादूगरों की कहानी। वाओ! बट एल्बर्ट, आई हैव अ क्वेश्चन। उसने उलझी नज़रों से उसे देखते हुए कहा था। क्या? बताओ। उसने उसे देखते हुए कहा था। जब वालिद का नाम जुनैजो था तो बेटी का नाम माहम कैसे? आई मीन बाप नॉन मुस्लिम था तो बेटी का नाम इस्लामिक कैसे?
اس نے حیرانی سے کہا تھا۔ اس کا نام ماہم اس لیے تھا کیونکہ اس کی والدہ مسلم تھیں اور ماہم کی پیدائش کے بعد اس کی والدہ انتقال کر گئیں۔ چونکہ جنیجو اس خاتون سے محبت کرتا تھا اس لیے اس نے اپنی بیٹی کو اپنی بیوی کا نام دے دیا، جو بڑی ہو کر شہزادی ماہم کہلائیں، ایک رحم دل اور خوبصورت شہزادی۔ البرٹ نے اس کی حیرت کو دور کرتے ہوئے کہا تھا، مگر جو نقشہ تم اس خوبرو جادوگر کا بتا رہے ہو وہ اتنا مختلف کیوں ہے اس بک پر بنی تصویر سے؟ جولی نے ایک اور سوال داغا تھا، مگر اس سے پہلے وہ اس سوال کا جواب دیتا، گھر کے دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ آئی تھنک کوئی آیا ہے، تم جا کر دیکھو، میں بھی اس بک کو رکھ کر آیا۔ البرٹ نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا، جو منہ پھلائے اسی کو دیکھ رہی تھی۔ یقیناً وہ اس کے بارے میں جاننا چاہتی تھی، اسے یہ کہانی بہت دلچسپ لگی تھی۔ تمہیں تفصیل سے اس کہانی کا آغاز اور انجام بتاؤں گا، کیونکہ بس تھوڑی ہی بک رہتی ہے ریڈ کرنے والی، پھر تفصیل سے سب بتاؤں گا۔ اب ذرا تم دیکھو کون آیا ہے، میں یہ بک شیلف میں رکھ لوں۔ اس نے بک پر ایک کپڑا ڈالتے ہوئے کہا تو جولی باہر نکل گئی تھی، جبکہ البرٹ اس بک کو حفاظت کے ساتھ شیلف میں رکھنے کے لیے بڑھا تھا۔ ایک کال کوٹری نما کمرہ ہے جس پر اندھیرے کا راج ہے، اور اس سے بھی بھیانک جو چیز اس کمرے میں ہے وہ ہے اس کمرے کا منظر۔ جگہ جگہ ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں، ہر طرف بدبو کا عالم ہے، اور سامنے پڑی وہ 4 لاشیں ہیں جو شاید لاشیں نہیں تھیں بلکہ بے ہوش کیے گئے وجود تھے، جو کہ مختلف اقسام کے جانور دکھائی دے رہے تھے۔ اچانک اس کمرے میں کچھ روشنیوں نے اجالا کیا تھا، اور وہ خوبصورت قوس و قزح جیسی رنگت رکھنے والی شعاعیں کمرے میں داخل ہوئی تھیں اور ان بے سود پڑے جانور نما وجودوں میں داخل ہوئی تھیں، جس سے ان جانوروں نے آنکھیں کھولی تھیں۔ اس سے صاف واضح تھا کہ یہ روشنیاں ان کو جگانے یا زندہ کرنے کے لیے ان تک بھیجی گئی تھیں۔ ایک دم وہ چاروں اپنے ہوش میں آتے ہی اٹھ کھڑے ہوئے تھے، اور ان میں سے ایک نے، جو الو نما ظاہر ہوتا تھا، فوراً ایک لمحے کے 1000ویں حصے میں بجلی کی تیزی سے حرکت کرتے ہوئے سامنے لگے ایک الارم کو تباہ کیا تھا، جس کی وجہ سے وہ الارم اپنے مالک کو ان کے ہوش میں آنے کی اطلاع نہیں دے پایا تھا، اور یوں ہی کانوں کان کسی کو خبر تک نہیں ہوئی تھی، اور وہ چاروں اب زندہ ہو چکے تھے، اور یقیناً یوں صدیوں بعد جاگنا پیٹر کے لیے، اور یقیناً ان کا یوں صدیوں بعد جاگنا پیٹر کے لیے خطرے کا باعث ہوتا۔ مگر اس پیٹر کو کیا معلوم تھا کہ اس کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے۔ انسان کی غفلت اور بیجا ہوشیاری اسے کہاں سے کہاں لا کھڑا کر دیتی ہے، یہ شاید اسے پتہ نہیں تھا۔ اگر اسے علم ہوتا کہ اس کی غفلت اسے کتنا بڑا نقصان کروا سکتی ہے تو وہ ایسی حماقت کبھی نہ کرتا۔ جبکہ دوسری جانب اس حیوان نما انسان کا کہکا بے ساختہ تھا اور اپنے پلان کے پہلے مرحلے کو عبور کر چکا تھا، اور اس پلان پر اس نے کتنے سالوں سے سوچ رکھا تھا۔ بس اسے انتظار تھا تو ایک وقت کا جو اب آ چکا تھا۔ اس کی پوری نہ سہی آدھی جادوئی طاقتیں اسے مل چکی تھیں، جس کا علم اس نے کسی کو لگنے تک نہیں دیا تھا، اور اب اسی طاقتوں کو استعمال کر کے اس نے اپنے 4 جانبازوں کو زندہ کیا تھا، جو صدیوں پہلے پیٹر کے کیے گئے جادو کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے تھے، یا یہ کہنا بہتر ہوگا کہ وہ نیند کی دنیا میں چلے گئے تھے۔ وہ وہاں بیڑیوں میں جکڑے ہوئے آج بہت خوش تھا، اور خوش کیوں نہ ہوتا، اس کے پلان کا فرسٹ اسٹیپ کامیاب ہوا تھا، اور اب اس کی یہ آدھی جیت بہت جلد پوری جیت بننے والی تھی۔ صاحب کچھ کھانے کو دے دو، مدد کر دو صاحب، چند پیسے دے دو صاحب۔ اس ننھی سی کلی نے ایک سوٹ بوٹ والے آدمی کے پاس آتے ہوئے مسکین سی شکل بنائے کہا تھا، چل دفع ہو یہاں سے، پتہ نہیں کہاں کہاں سے آ جاتے ہیں۔ اس آدمی نے اس ننھی سی کلی کو دھتکارتے ہوئے کہا تھا،
साहब, मदद की ज़रूरत है मुझे। मेरा बाप 2 दिन से बुखार में तप रहा है। घर में कुछ खाने को नहीं है साहब। 2 दिन से मैं और मेरा बाप भूखे हैं। वो मर जाएगा साहब, कुछ खाने को दे दो। उस नन्ही कली ने भर्राई हुई आवाज में मिन्नत करते हुए कहा था, मगर जिससे वो मदद की अपील कर रही थी वो दौलत के नशे में चूर एक मगरूर आदमी था। मैंने कहा ना, दफा हो जाओ यहां से। नहीं है मेरे पास कोई पैसे, तुम जैसों को अच्छी तरह जानता हूं। बस पैसे चाहिए होते हैं अपनी गरीबी का रोना रोते हो। उस आदमी ने उसे हकारत से देखते हुए कहा था, मेहरबानी कर दो साहब, अल्लाह के वास्ते कुछ। अभी वो कहने ही वाली थी कि उस आदमी ने उसे धक्का दिया था और वो मुंह के बल जमीन पर गिरी थी। उसका बाजू जोर से पत्थर पर लगा था, जिसकी वजह से अब उसके बाजू से खून रिसने लगा था और वो दर्द की शिद्दत से कर्राह रही थी, जबकि वो बेहिस आदमी वहां से चला गया था। तुम ठीक हो औला? ठीक हो ना? उसके हम उम्र लड़के ने फौरन उसके पास आते ही फिक्रमंदी से अपनी तोतलाहट भरी जबान में कहा था, जो दूर खड़ा ये सब देख रहा था। मैं ठीक हूं, उसने भर्राई हुई आवाज में कहा था, मगर सच तो यह है कि वो ठीक नहीं थी। 2 दिन से भूखी थी, जिसके बायस अब उसे कमजोरी होने लगी थी, और दूसरा अपने बाप की बीमारी की वजह से परेशान थी। वो तेली मलल नहीं तलेदा एलेलोल हम अलीबोली मदद नहीं करते। वो तेरी मदद नहीं करेगा। ऐसे लोग हम गरीबों की मदद नहीं करते। उस सांवली रंगत के हामिल लड़के ने तलखी से कहा था, जबकि वो अपना बाजू सहलाते हुए उसे सुन रही थी। कौन करेगा मेरी मदद? मुझे पैसों की जरूरत है। मेरे बाप ने कुछ नहीं खाया, 2 दिन से बुखार में तप रहा है वो। उसने फिक्रमंदी से कहा था, तू ए ले ले, इससे एक वक्त का खाना आ जाएगा। तू ये ले ले, इससे एक वक्त का खाना आ जाएगा। उसने उसकी जानिब 200 के नोट बढ़ाते हुए कहा था। नहीं, मैं तुमसे पैसे नहीं लूंगी, तुम भी तो मेरी तरह गरीब हो। उस 12 साला बच्ची ने उसे मना करते हुए कहा था, ले, मैं तेली तला हूं, इन अमीर लोगों की तला नहीं हूं जो पेटों वालों की दिखते हैं। ले, मैं तेरी तरह हूं, इन अमीर लोगों की तरह नहीं हूं जो पैसों का रौब दिखाते हैं। उसने उसकी जानिब पैसे बढ़ाते हुए कहा था, जो उसने थाम लिए थे। आखिर जरूरत थी। इसे मैं तुझे वापस कर दूंगी। ये मुझ पर उधार है तेरा। भले मैं गरीब हूं, मगर तुझसे मुफ्त के पैसे नहीं बटोरूंगी। उसने पैसे लेते हुए उसे कहा था, जो उसे देख रहा था ना, जाने क्यों वो अकड़ा और दुनिया के रंग छोटी सी उम्र में देखकर तल्ख हुआ लड़का आज उस लड़की को अपनी जमा पूंजी दे रहा था, वो भी बिना कुछ सोचे समझे। दोस्त, रानी ने उसकी जानिब हाथ बढ़ाते हुए कहा था। उसने एक नज़र उस बच्ची को देखा जो उसके कंधे तक आती थी, फिर उसके साफ रंगत के हामिल हाथों को जो उसने आगे बढ़ाया हुआ था। दोस्त, उसने मुस्कुराकर अपना हाथ उसके हाथ से मिलाया था। आओ, साथ मिलकर खाना लेने चलते हैं, रानी ने मुस्कुराते हुए कहा था, और वो सर को हिलाता उसके साथ चल दिया था। तुम्हारा नाम क्या है? रानी ने सड़क के किनारे चलते हुए उससे पूछा था। मेरा नाम ईनान है। मेरा नाम जीशान है, उसने उसे देखते हुए बताया था। अच्छा नाम है, रानी ने मुस्कुराते हुए कहा था। तुम्हें मेरी बात समझ में आ जाती है? तुम्हें मेरी बात समझ में आ जाती है? जीशान ने हैरानगी से पूछा था।
क्योंकि उसने एक बार भी उसके तोतले होने का मजाक नहीं उड़ाया था और ना ही उससे ये कहा था कि उसे उसकी बात समझ में नहीं आई। हाँ, आ जाती है समझ मुझे, रानी ने उसे देखते हुए मुस्कुरा कर कहा था। तैते? कैसे? ज़ीशान ने आंखों में ढेरों हैरानगी लिए सवाल दागा था। क्योंकि मैं 1 साल से इस ज़बान को सुन रही हूँ, इसलिए मुझे तुम्हारी ज़बान को समझने में मुश्किल पेश नहीं आई। रानी ने थोड़ी अफसुर्दगी से कहा था। तिस्ती ज़बान सुनती रही हो? किसकी ज़बान सुनती रही हो? एक और सवाल पूछा गया था जिस पर रानी ने एक लंबा सांस खारिज किया था। मेरे बाबा की। वो फालिज के मरीज हैं, 1 साल हो गया उनकी ज़ुबान को फालिज हुए। वो तुम्हारी तरह बल्कि तुमसे भी ज़्यादा बाज़ औक़ात तोतली ज़बान में बोलते हैं। उनकी ज़ुबान को मैं समझती हूँ। पहल तो मुझे मुश्किल होती थी, मगर फिर आदत हो गई और अब तो बहुत हद तक सारी बातें समझ में आ जाती हैं मुझे। रानी ने उसे देखते हुए बताया था। अच्छा, वो फ़कत उतना ही कह पाया था। हाँ, कभी फुर्सत में तुम्हें अपनी कहानी सुनाऊंगी। चलो, दुकान आ गई है, सामान ले लेते हैं। रानी ने उसके चेहरे को देखते हुए कहा था, जिससे वो काफ़ी उलझा हुआ दिख रहा था। फिर दोनों ने खाने का कुछ सामान दुकान से ख़रीदा था और रानी के घर की जानिब चल पड़े थे। काफ़ी देर चलते चलते वो एक झोंपड़ी नुमा घर के पास पहुँचे थे जो कपड़ों से बनाई गई थी। देखकर साफ उनकी ज़िंदगी के बारे में अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि वो कैसे गुजारा कर रहे होंगे।